Hello, you're watching DD News. I'm Preeti. With me is my co-anchor Chandrasekhar Joshi, and we welcome you all to Atmanirbhar Bharat, the show wherein we bring out one aspect of the economy which will help in achieving the Atmanirbhar Bharat, the self-reliant Bharat. And today we're talking of the initiative by TriFed, the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, that is TriFed, under Ministry of Tribal Affairs, has been doing commendable work to transform the lives of the tribals, from starting tribal e-market to introducing more products and including more products by tribal artisans under its ambit. It has been a ray of hope for the tribals in these COVID times. Tribes India has taken up a new initiative to include more products, this time produced by the inmates of Central Jail of Jagdalpur. This indeed is another initiative to provide bigger market for the tribal lives and also make them self-reliant and Atmanirbhar. How important is this and what fillip will it give to the tribal industry? We'll talk more about it with guests. बिल्कुल। अगर हम जनजातियों की बात करें और जनजातियों के जो उत्पाद हैं या उनके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से देश विदेश के बाज़ार में ले जाया जाए, इसके लिए ये शुरुआत की गई है ट्राइफेड की ओर से। और ट्राइफेड की जो वेबसाइट हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार 1,25,000 परिवार, जनजातीय परिवार इससे जुड़े हुए हैं और करीब 1 लाख वहाँ पर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं इन जनजातियों के द्वारा बनाए गए। 121 रिटेल आउटलेट्स पूरे देश में हैं जहां पर ये प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि अभी तक 91 करोड़ रुपए का बिक्री हो चुकी है। जो जनजातियों के बनाए हुए उत्पाद हैं उनकी बिक्री सीधे लोगों तक हो रही है ई मार्केट प्लेस के जरिए। ये शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा और इसी शुरुआत को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत कुमार मित्तल, एमडी हैं NICSI मेती के, उनसे बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, जो ये इनिशिएटिव है सरकार का ट्राइफेड के जरिए ई मार्केट प्लेस का, क्या आपको लग रहा है कितनी सफल हो रही है ये यात्रा? नमस्कार, मैं का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने खास फाइल पे ट्राइबल आर्ट्समैन बैठा है उसके लिए एक कार्यक्रम दिया। इस कार्यक्रम में जो ट्राइब्स इंडिया का एक इसके जरिए लास्ट माइल पर बैठे हुए ट्राइबल को लाभ पहुंचाना, तकनीकी के नए माध्यमों के द्वारा उसकी शुरुआत श्री अर्जुन मुंडा जी माननीय मंत्री महोदय ने की थी। और इसमें एक जो धारणा की गई वो इस बारे में की गई कि एक मार्केट प्लेस जो मेरे नागरिक हैं देश के, तो दूर अंचलों में बैठे हैं और विशेषकर उस अंचल में बैठे हैं तकनीकी सुविधा इतने अन्य भी जो तकनीकी हम अपने के लिए आवश्यक होती हैं वो भी नहीं। Mr. Prashant, when we talk of expanding the ambit of the products which are under TriFed, e-marketplace is one aspect of that. Also, bringing into its ambit something which is produced by inmates of a jail is indeed very innovative, very encouraging. But going for a person to be for the products to be available online, how much of a fillip will it give to the industry? Because this is the era of online business, and everybody is keen on, instead of going to the markets, if things can be made available sitting at home. So how much of a fillip will it give to the industry? As everyone is aware, in this difficult time of COVID, yes, online market is the buzzword, and it has proved its importance. Not only because it is, I think, your health friendly, it protects you against the threat of COVID infection. It also provides everybody equal opportunity. You can think of some shop owner who can afford that much amount to have one shop and one showroom established, and one person who is not so rich or who is just making meals with his or her earnings, selling the craft, such product, especially craft product,
So there is a difference when we talk about the tangible shop assets. One showroom and one person sitting on the pavement. But this e-market place provides equal opportunity to both. You are having the same screen available for the pavement dweller and the showroom owner. Yes. And he referred to this जी जी प्रशांत जी, आप बने रहिए हमारे साथ प्रवीर कृष्णा एमडी है ट्राइफेड के, वो जुड़ चुके हैं। प्रवीर जी, आप सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कितनी सफलता आपको मिल रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर को ये शुरुआत हुई थी ई मार्केट प्लेस की, और अभी जो मैं वेबसाइट में देख पा रहा हूँ काफ़ी अच्छी इसमें रिस्पॉन्स है। कैसी आपकी पिछले 1-2 महीने की जो जर्नी है, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? ये धन्यवाद। ये जो पूरी योजना है, ये देश के जो छोटे हमारे कलाकार और छोटे उद्यमी, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, फॉरेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं, वो लगभग 5 लाख के करीब हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। उनकी प्रॉब्लम है कि ऐसे जगहों पे रहते हैं कि उनकी मार्केटिंग में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो ट्राइफेड ये संस्था है जो नॉर्मली उनकी मार्केटिंग में उनको सहयोग देता है और उनकी सामग्रियों को दूरस्थ स्थानों से बड़े बाज़ारों में अच्छी कीमतों पर बेचने की में मदद करता है। जो बिचौलियों की जो रोल होती है उसको कम करके सीधे आदिवासी उत्पादकों को बड़े बाज़ारों तक लाने का काम करता है। जी प्रवीर जी, अभी जो एक नई शुरुआत इस पैंडेमिक में कठिनाई ये हुई कि बहुत सारे कनेक्शंस, बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी समस्याएं आने लगी और मार्केटिंग और बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि काफी लगभग अब 7-8 महीनों से, तो लगभग 4 महीने पहले योजना ये बनाई गई कि जितने 5 लाख कलाकार हैं इनको वर्चुअल मार्केटिंग से जोड़कर और इन्हें भी हम एक जो प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे अपनी ये सामग्री को न केवल देश में बल्कि विश्व में बेचने में सफल हो। उसी के लिए मार्केट प्लेस, ट्राइब्स इंडिया ने मार्केट प्लेस बनाया है और इसमें हम उत्कृष्ट जो उत्पाद हैं ट्राइबल्स की उसको उसमें डाल रहे हैं और ये बहुत सफल हो रहा है। इसमें लगभग हम 4 करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग गए हैं और ऐसे लोग जो गांव में बैठे हैं वो अब देश के किसी भी कोने में उनकी सामग्रियों का विक्रय हो रहा है। और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसे एक ट्राइबल अमेज़न की तरह डेवलप करें, इंडियन ट्राइबल जो ट्रेडिशन है उसको शोकेस करें और हमारे इन छोटे कलाकारों को राष्ट्रीय और वैश्विक मार्केट्स तक ले जाएं। All right, Mr. Krishna, we'll talk more about it. A tribal Amazon is what you envisage. But I would want you to acquaint our viewers as to how big is the tribal industry in the country. Say a few years back, tribal products or tribal industry, tribal merchandise meant only which was available during, during melas, during fairs or at hearts. But now there is more popularity, there is, there is more contribution in fact by the industry into the economy. So as a sector, as an industry in itself, how important and crucial is it for the economy? This is a very, very strong component of the local for vocal concept of the Prime Minister. Yes. जो हमारे ये उद्यमी हैं, these artisans, these entrepreneurs, they're all village based and live in they are forest dwellers based in villages which are forested. So they are a classic example of how this whole program can benefit them and link them to the big markets. Now, the production system, there are 3-4 components. One is conceptualizing what to produce, then putting the things in order to produce it. But the biggest component is then being able to market it. If you can produce good things and cannot market it, they are of no value. So this is the position, that this concept. While we are producing wonderful things, we also have a platform to market it all over the country. And this is the beauty of this program, that it is giving access to big markets to small producers who would otherwise not have access these markets. प्रवीर जी, एक और नई शुरुआत हम देख रहे हैं, जो जगदलपुर जेल में जो ट्राइब्स हैं वहाँ पर उनके बनाए हुए प्रोडक्ट भी आप लोग उपलब्ध करा रहे हैं। जी हाँ,
हम लोगों ने जगदलपुर मैं बस्तर में 4 साल तक कलेक्टर के रूप में काम किया हूँ, वही कई वर्षों पहले। तो जगदलपुर जेल में मुझे पता है कि एक से एक कलाकार जो वहाँ के अनफॉर्चुनेटली वो बंदी लोग हैं, लेकिन वो कलाकार बहुत उत्कृष्ट श्रेणी के हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, लकड़ी के, बेल मेटल के, टेक्सटाइल्स। तो उनकी से हम लोगों ने वहाँ के जेल के जो संचालक हैं उनसे हम लोगों ने एमओयू किया है, और वो जो जेल में जो भी उत्पादित होगा हम इसे ट्राइब्स इंडिया के मार्केट प्लेस पे और हम अपने सभी आउटलेट्स पे पूरी देश में उसका विक्रय करेंगे, और उसमें लगभग 70 से 80% उन बंदियों के खाते में जमा करवाएंगे। जी प्रवीर जी, अगर आउटलेट्स की बात करें तो जो देश भर में आपके आउटलेट्स हैं, हम आपकी जो ट्राइफेड की वेबसाइट है उस पर भी देख पा रहे हैं 121 आउटलेट्स हैं, 91 करोड़ का अभी तक आप बिजनेस कर चुके हैं, इन लोगों को फ़ायदा हो चुका है। किस तरह से ये कर रहे हैं? इतना क्या प्रोडक्ट उपलब्ध हो पा रहा है आपके पास? किस तरह से आप कर रहे हैं? ये ट्राइबल्स की जो कला है वो विश्व स्तरीय है और क्वांटिटीज भी बहुत है, लेकिन उसमें एग्रीगेशन नहीं हो पाता है, उसमें जॉइंट एफर्ट्स हो के मार्केटिंग नहीं हो पाता है। हम तो इसे 1000 करोड़ तक ले जाने की योजना बनाए हैं। इतनी समृद्धि और परिपूर्णता है कि अगर ऑर्गेनाइज तरीके से इसकी मार्केटिंग कर दी जाए तो ये 1000 करोड़ का व्यवसाय हो सकता है। तो जो ई मार्केट प्लेस और ये जो हमारी 121 शॉप्स, इसको हम 200 तक ले जाना चाहते हैं, इनके माध्यम से हम हर घर में, देश के हर घर में एक ट्राइबल प्रोडक्ट ले जाना चाहते हैं, और इस व्यवसाय को तत्काल 1000 करोड़ तक ले जाया जा सकता है। इट इज स्केलेबल टू अबाउट 1000 करोड़ इमीडिएटली। All right, ambitious project, ambitious initiative there. Mr. Mittal, when we talk of empowerment of the tribals, something providing online means that the tribals need to be well acquainted with the norms of the online online ways of trading. Added to that, which would mean elimination of the middlemen altogether. So technicality, how do we empower the tribals so that they are comfortable with this medium as well? Actually, the only way to get them onto this is we onboard them, train them, and then till they learn, we do it on their behalf. The GST issues, the technical issues of managing the back end of a website and accounting and transfer of funds. So we are already working on a very, very virtual system. It's all computerized. We work, all the transfers of money is all through RTGS and other bank accounts. So we have also already trained them, and the new entrants are trained before they get used to it and they start functioning. So it's a state of the art. It's not tribal enterprise does not mean that we should go back and do the way things were done 30 years, 40 years ago. We need to be state of art and a step ahead of what is happening already. So this website and the marketing support that TriFed provides to tribal artists is all state of the art. It's all e-marketing, and it's all cashless, and it's all completely virtual. So it's a very high quality of intervention that we do with the tribals. All right, I'll take that forward to Mr. Mittal. Mr. Mittal, your take on making the tribals technically empowered as part of Ministry of Electronics and IT. What is your take on that elimination of the middleman altogether, which also means imparting and acquainting the tribal people with the norms of online trading? Online means of business, online means of doing business. It was very important to educate as a tribe line that they are have their presence in all the field sections. So when we are interacting with those craftsmen for onboarding process, a stringent training is being imparted to them, and they are being told how to operate their account electronically, how the photos of their artifact can be uploaded, how the description can be uploaded, and TriFed is taking this forward very enthusiastically, and their staff is cooperating us day in out, and I think during the past 2 months they have been very committed to get this implemented, and with their cooperation, we would be able to reach the mark of 1000 crore as told by TriFed. प्रवीर जी, एक सवाल और था कि
व्यवहारिक रूप से होता क्या है कि जो ट्राइबल प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, यूनिक प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन जब वो मार्केट तक आते हैं उनके रेट काफ़ी हाई होते हैं, लोग भी उनको कम खरीदते हैं। ऐसे में जो वेबसाइट्स के ज़रिए या जो एक नई शुरुआत की गई है, ई मार्केट प्लेस बनाया गया है, इसके ज़रिए लोगों तक सही कीमत में वो सामान पहुँचे और साथ ही साथ जो उसको बनाने वाला ट्राइब्स है उसको भी अच्छा रेट मिले, ये किस तरह से आप सुनिश्चित कर रहे हैं? ये हमारा जो प्राइसिंग पॉलिसी है, इट्स वेरी गुड फॉर द ट्राइबल एंड वेरी फेयर फॉर द कस्टमर। तो इसमें हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे करीब 40% अधिक हम ट्राइबल को देते हैं और केवल 10% अधिक पे हम कंज्यूमर को बेचते हैं। ट्राइफेड इसमें कोई मुनाफा नहीं लेता है, इसमें 70 से 80% ट्राइबल को जाता है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड ऑल दैट इज ओनली टेकन फ्रॉम दिस होल प्रोस्पेक्ट। सो अगर आप ट्राइब्स इंडिया के प्रोडक्ट्स देखेंगे दे आर वेरी रीजनेबली प्राइस्ड एंड आई कैन टेल यू दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स, हैंडमेड एंड ब्यूटिफुली मेड एंड वेरी रीजनेबली प्राइस्ड। सो जो ये लोगों को ये एक है गलत फहमी जो कह लीजिए, आप हमारे मार्केट प्लेस पे आइए, देखिए उन सामग्रियों को देखिए एंड देन यू रियलाइज दैट दीज आर वेरी फेयरली एंड वेरी वेल प्राइस्ड एंड इट्स अ गुड बार्गेन। और कोई अच्छी चीज़ को आप अगर अधिक कीमत पर रखेंगे तो उसकी मार्केट, हम इसमें विश्वास करते हैं कि कम कीमत रखी जाए, अच्छी चीज़ की कम कीमत पे पूरे देश के देशवासियों को इसको एक्सेस जिसमें हो पाए और सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें। तो द प्राइसिंग पॉलिसी इज़ वेरी वेरी वेल डिफाइंड और इसमें सबों का लाभ है, सबों का लाभ है। प्रवीर जी, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि अभी ट्राइफेड की जो वेबसाइट है इसके ज़रिए हमने देखा कि आपने शुरुआत की तो करीब 91 करोड़ का वहाँ पर बिजनेस हो चुका है और काफ़ी वहाँ पर लोग भी आए हैं। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स जिस तरह से चल रहा है, क्या अमेज़न के आप बात कर रहे हैं या दूसरा, किस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा माध्यमों के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों तक पहुँचें? हम लोग बिल्कुल इसमें, हमारा वेबसाइट तो है, फिर हम लोगों ने जितनी देश की जितने वेबसाइट्स हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा, इन सबसे हम लोगों ने वो किया है, MOU किया है और इनके माध्यम से भी अपनी ट्राइबल आर्टिजन्स की सामग्रियों का विक्रय कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि करीब 1 माह और में हम एक ऐसा नेटवर्क बना लेंगे जो टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली और इतना प्रोफिशिएंट होगा कि लगभग इसमें हम 50 लाख का विक्रय और विपणन कर पाएंगे। और अल्टीमेटली जब बल्क होगा तब इसमें इसका व्यवसाय 1000 करोड़ हम लिख रहे हैं, अभी 91 करोड़ पे हमारा संतोष नहीं है, हमें इसे 1000 करोड़ तक ले जाना है। और निक्सी हमारे पार्टनर्स हैं, उसमें हम उनके पूरी डट के वो लोग भी पूरी परिश्रम से इस सिस्टम को और बेहतर करने में लगे हुए हैं। और NIC और MIT के जो सचिव महोदय हैं, इन सबों से वो समय समय पर इसकी प्रगति पूछते रहते हैं और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म आदिवासियों के नेतृत्व में तैयार करें ट्राइफेड, जिससे आदिवासी की वो अपनी दुकान, वी कॉल इट कि भाई दिस इज अ शॉप ओन्ड बाय द ट्राइबल, सो कम एंड बाय फ्रॉम द शॉप्स एंड मतलब फ्रॉम आवर होम टू योर होम। ये जो 91, ये जो प्रीति एक मिनट, ये जो 91 करोड़ है प्रवीर जी, ये जो 91 करोड़ है, ये कितने समय में ये बिजनेस हुआ है? ये करीब 6 महीने में जी। All right, 6 months is what you tell us, Mr. Praveer. So, what has been the impact of COVID on the industry, and to what extent, the ripples, if I may say, the ripples have been witnessed? Yeah, it's been quite deleterious. The effect of COVID has been quite the economic, the marketing and selling and all that with the sphere of COVID. Then we started this program called Livelihoods with Security and Health. एंड उसमें यूनिसेफ के साथ मिलकर हमने अपने सभी कलाकारों को सेफ्टी सिस्टम से अवगत कराया, हाउ टू सोशल डिस्टेंस, हाउ टू वेयर ग्लव्स एंड मास्क एंड यूज ऑफ सोप्स एंड हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस मेंटेनिंग हेल्थ एंड सिक्योर सेफ्टी। सो उसके चलते फिर सब पिकअप हो गया है। व्हाइल देयर वाज अ लिटिल ग्लट for the first 2-3 months when there was a complete closed down, sort of complete shutdown, but now it's opening up, and I'm sure with all the efforts that are being made at the level of the government and people joining hands to push this forward, I'm sure things will settle down very quickly. So there was a problem. Right, Mr. Mittal, when we talk of providing something online,
who all are the stakeholders to ensure that no discrepancies are witnessed, not only just by the tribals but also by the customers or the clients who want to do online shopping, who want to purchase online products put forth by the tribal lives? As it has already been mentioned that we have to be local for local, and if I was talking about the local, my description of the product should be accurate, and I would like to mention it, rather underline it. For the description of every product, Mr. MD himself is taking keen interest and ensuring that there should be no discrepancy while we are posting that description over portal, because unless until you will put the dimension, weight of the artifacts, description, the origin of the artifacts, there are fair chances that somebody can play the mischief. But beauty of this portal is that all the artisans who are, or the village entrepreneur who are putting their products on this portal are personally, some sort of authentication is being done by field agencies of TriFed. So we don't see any chance of any fuzzing with the originality of the product or the description of the product. I think these are the two concerns which you find have become a downfall or upliftment of any e-commerce portal. People can say, I believe on this portal XYZ because I don't get any spurious material if I order on that portal. So we are competing with those world standards portals, and I would like to mention it that Mr. Parveer is just putting every inch or everything himself. Takes even late night meetings whenever some issue is reported, and we work with them, and we are putting all of our effort to make it a great success for our India, and it will become another vocal for vocal as far as the e-commerce portal is concerned. प्रशांत जी, एक सवाल यहाँ पे और आता है कि टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो अभी जो वेबसाइट है इसने इतना अच्छा किया है, जो इसके परिणाम दिख रहे हैं वो काफ़ी एक सफलता की कहानी कहते हैं, लेकिन अगर इससे आगे निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश करें, देश के साथ साथ विदेशों के लोगों तक भी पहुँचने की कोशिश की जाए, तो किस तरह से आप कहेंगे कि इसको आगे किया जा सकता है, टेक्निकली किस तरह से और आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, अभी मैं इसके लिए पुनः विशेष धन्यवाद देता हूं प्रवीर जी का, जो इसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात सोच रहे हैं। हाँ, आपने सही कहा, अभी हमने सिर्फ इंडियन कंटिजेंट में इसकी डिलीवरी दे रहे हैं, बट एमडी ट्राइफेड इज परस्यूइंग विद इंटरनेशनल कार्गो एजेंसीज ऑल्सो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि डिलीवरी सही हो, बिना टूट फूट के हो और अफोर्डेबल कीमत में। ये दो चीजें होती हैं किसी भी पोर्टल, ई कॉमर्स पोर्टल के लिए। एक बार जब आपने डिस्क्रिप्शन सही कर लिया, उसकी प्राइस सही कर ली, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कुरियर चार्जेस मांगने शुरू किए तो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जैसा कि सर ने बताया, इसका इंटीग्रेशन फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ भी हो रहा है, और उसके बाद स्काई विल बी द लिमिट। पूरे ग्लोबल सिनेरियो में ये प्रोडक्ट्स जाएंगे, और जहाँ तक प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में मिस्टर प्रवीण ने बताया है, नेचुरली ये प्रोडक्ट, जब मैं खुद भी इन प्रोडक्ट्स को मैंने देखा, टेक्नोलॉजिकली तो काम कर रहा था, लेकिन मुझे इसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आई, और वास्तव में एक क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक भी है ट्राइफेड के स्तर पे, जिससे कि हम ये समझते हैं कि किसी भी हमारे उपभोक्ता को निराश नहीं होना पड़ेगा। और जहाँ तक तकनीकी समस्याओं का सवाल है, ये हमारा भी पहला प्रयास था। जैसा सर ने बताया, माननीय सचिव महोदय और हमारी महानिदेशक दोनों ही इस पे बड़े कंसर्न है, और हम लोगों को उनकी तरफ से भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, और हम इसको और भी परिष्कृत रूप में और भी बेहतर और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।
So you're talking of quality and quality checks. I'll take that forward to Mr. Praveer. Sir, getting something online, sitting at home is one aspect, but ensuring that you're getting the original, the original product which you wanted to buy is another aspect. What is TriFed doing to ensure no fake merchandise is available on online portals? A very strong quality control. Government of India, the Tribes Mark, TriFed has the Tribes Mark, and we have a very strong system of paneling people who can sell online. While we are open to all tribal artisans, quality and purity of the product is of very high importance. And Tribes India is a brand which is now established, and we are known for quality and only for the purity of the product. So if it is Tribes India, it has to be pure and it has to be of the highest quality that is possible in India. And we have a very strong back-end system which looks after the quality parameters. प्रवीर जी, एक और सवाल है। अभी जो आप प्रोडक्ट इस पर लेकर आए हैं वो ये प्रोडक्ट हैं कि जो ट्राइब्स बहुत दिनों से बना रही थी और काफ़ी अच्छे वो प्रोडक्ट थे, वो उस प्रोडक्ट को मार्केट तक लाने में या ग्राहकों को लाने में उनको परेशानी होती थी। आपने एक अच्छा मंच उपलब्ध कराया, लेकिन कई सारी, क्योंकि इंडिया, अगर हम भारत की बात करें तो हर स्टेट में लगभग ट्राइब्स हैं और कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके आर्ट, जिनका जो प्रोडक्ट था, कई सारी वो चीज़ें बनाते थे। पिछले 1 दशक में, 1.5 दशक में वो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। आज ऐसी जगह पे वो लोग आ चुके हैं कि अब उनकी जो आने वाली पीढ़ी है उनको उसकी कला के बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनको ट्रेंड किया जाए, उनके उस प्रोडक्ट्स को दोबारा मार्केट में लाया जाए, इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? ट्राइफेड का बेसिक पर्पस यही है कि जो ट्रेडिशनल ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्योरिटी और उनकी जो जिस ट्रेडिशन हज़ारों साल से, सैकड़ों साल से वो जिस तरह से वो बनाए जा रहे हैं, उसकी शुद्धता बरकरार रखते हुए उसे एक मार्केट दिया जाए जिसमें ऐसे कलाकार जो ये इनको बनाते हैं उनका व्यवसाय चलता रहे, उनकी आजीविका भी चलती रहे, तभी तो व्यवसाय चलेगा। इसके लिए पूरे देश के लगभग हर राज्य में, हर क्लस्टर्स में हमने करीब ऐसे 10,000 क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ ये ट्राइबल्स अपना काम करते हैं। उसमें पेंटिंग्स हैं, उसमें बेल मेटल का काम है, उसमें वुड वर्क है, टेक्सटाइल्स हैं, वुलन्स हैं, एडिबल आइटम्स हैं, जूट, बैम्बू। आप समझ के चलिए कि हमारे पास लगभग 26,000 तरह की उत्पाद हैं जो ट्राइबल्स बनाते हैं। 26 ज्वेलरी है, हैंडमेड ज्वेलरी है, आप कुछ भी सोचिए तो ट्राइबल वर्ल्ड उसको प्रोड्यूस करता है। तो वी हैव 26,000 वैरायटीज ऑफ आइटम दैट ट्राइबल्स मेड। उसके मेरे पास हमारी एक इन्वेंट्री है ट्राइफेड की, और उसके लगभग समझिए 25 से 30 लाख आइटम्स हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो इन उत्पादकों को हम एक लाइफलाइन देते हैं जिसके थ्रू ये कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको हम सेल करते हैं तो ये फिर और प्रोड्यूस करते हैं। तो 26,000 तरह की चीज़ों का हमने एक इन्वेंट्री बनाया है जिसके लगभग 20 से 25 लाख आइटम्स हमारे पास हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं, और इसी के मार्केटिंग के थ्रू इस कला को, इस विधा को हम सजीव और जीवंत बनाने की कोशिश करते हैं। और जितनी अधिक मार्केटिंग होगी उसमें उतना ही ये जीवित रहेगा और आगे बढ़ेगा। और इसमें हमें बहुत खुशी आपको ये बताते हुए कि ट्राइफेड ने इस कार्य में बहुत अच्छी सफलता हासिल की है, और ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए आइटम्स और भी जहाँ दूर दूर तक हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिसका काम ही ये है कि ऐसे विधाओं को, कलाओं को ढूंढे और फिर उन्हें चिन्हित करे, उन्हें जो भी संरक्षण, प्रोटेक्शन और बिजनेस की आवश्यकता है वो प्रदान करे जिससे वो जीवित और जीवंत रहे। All right, 26,000 products indeed is a massive list of products to offer. I would want you to You can think of anything and we'll have it. So this is what we want to promote. Like, look, this is not just a few things that tribals produce. It's a complete bucket list of 26,000 items. You can think of something and we'll have it. All right, good to know that. But sir, I would want you to elaborate more on how did this thought of, bringing under your ambit the inmates of a jail come? Where did this thought? Where was this thought ignited, and how? And also, indeed, it is a moral booster for inmates of a jail to do something for the society. I'll tell you. Also, let us know in detail which products are they specifically manufacturing or producing the inmates there.
Like I told you earlier, I worked as a collector in the district of Bastar between 1997 and 2000 for 4 years, and the collector's residence was next to the central district jail, and the collector is also the superintendent of that jail. So I used to visit this jail very regularly, and I saw those inmates producing wonderful products. They were all very high quality artisans. So we started a system then, and then I was reminded when I joined TriFed, and when we started this e-marketing, then we sort of got in touch with the superintendent there and said, is the thing continuing? He said, yes, it's continuing. Then we had a meeting with them. We spoke to the inmates, we talked to the jailer, we talked to the superintendent, and then the system immediately picked up, and we started this business of promoting and marketing quality items made by jail inmates. And we are now writing to all jailers of tribal districts, tribal areas, that look, we have started this, and if you want to join this, we'll be very happy to join. And this is how it started, and that is all. And we'll take it forward, and we hope to take it forward. We hope to take it along. We are writing to all collectors, in fact. We are writing to all collectors. We're all writing to all commissioners of tribal welfare, assistant commissioners of tribal welfare, who are posted in each of the 309 tribal districts of the country. And we are asking them to join with their tribal artisans and their groups and clusters. We'll give them a free space on the tribal virtual e-marketplace, which we call the Tribes India Marketplace. And gradually, we hope to cover the entire country. And everything that is tribal will be available on the tribal marketplace. And this will then go to the rest of the country and the rest of the world. We are in, like you were asking, we have written to 100 ambassadors of Indian embassies in foreign countries. And we are linking up with them, and then we hope to start selling in these embassies also. So it's a very ambitious program. Look, it's a very ambitious program. It needs a lot of promotion. It needs a lot of publicity, and it needs a lot of strong legs and shoulders to take it forward. So we have a team of 500 TriFed extremely warriors. We call them TriFed warriors, which is my team of 500 TriFed officers and employees, and our teams in state governments who are principal secretaries of tribal welfare and forests. And then with their teams and our team joining hand, we can quickly get it to every part of the country and to the rest of the world through the good offices of our ambassadors in the foreign countries. All right, so you're oozing out optimism, you're oozing out positivity, but to come to this day wherein you have sales of 91 crore rupees, where you have successful 26,000 products to offer, what were the challenges? I'm sure it would not have been an easy journey. There would have been a number of roadblocks, a number of hindrances. Let us know. We call it a 100 hurdles race. So you trip a few, you stand up. Yes, all right. प्रवीर जी एक clean up and then start running again. So it's a 100 hurdles race. Any business cannot start. It's like a startup. So any startup will have a lot of problems. और problem नहीं है तो फिर मजा क्या है? कोई चीज आसान है तो कब की हो गई रहती. So it's a tough thing to do, but my team is committed. We are all committed, and the pleasure that you get after doing a tough thing is what we look for, and this is what is the biggest. प्रवीर जी, हम प्रशांत जी के पास जाएं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप जो ट्राइबल रीजन है उसमें काफ़ी रहे हुए हैं, और अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो देश के कुछ राज्यों में, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें या उत्तर पूर्व की बात करें, एक वक्त में ट्राइब्स का कुछ हिस्सा था जो गलत रास्ते पे चला गया था और कहा जाता था कि वहाँ पर विकास नहीं हो पाया है. उसके बाद एक विकास की मुहिम वहाँ पर शुरू की गई. अब ये जो इनिशिएटिव आपका है, ये कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है उस परेशानी को दूर करने में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है. जो नक्सलवाद की समस्या है, जो ऐसे युवक हैं जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनको अगर हम पूरा रोजगार दें, so development is the best alternative to wean away those people back to mainstream businesses. और ये ऐसी कला है जिसमें वो पूरी महारत है, लेकिन चूंकि वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, ये उनके लिए उपयोगी नहीं है, उनके लिए इकोनॉमिक लाइवलीहुड नहीं दे पाती. लेकिन अगर उन्हें पूरी आजीविका मिलेगी, तो मैंने तो इसे बिल्कुल बहुत पूरी शक्ति से बताया है कि दिस कुड बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव, एंड दिस विल वीन अवे पीपल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दीज मिसलेड पीपल. तो अगर
अच्छी आजीविका, अच्छी लाइवलीहुड, अच्छा इनकम अगर हमें मिलेगा तो हम किसी ऐसे रास्ते पे क्यों जाएंगे जिसमें बहुत सारे रिस्क हैं। तो ये चॉइस उन्हें हम अफोर्ड कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत लोगों को सही दिशा में और सही रास्ते पे लाए, और ये बहुत ही सार्थक कदम हो सकता है एक ऐसे पथभ्रष्ट युवकों को एक पूर्ण रोजगार और अच्छी जो कहते हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग टर्म गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो जरूर आकर्षित करेगा। और मुझे तो कहना है कि द प्रूफ ऑफ अ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। सो ये ऐसी चीज है जो ये आदिवासी, ये ट्राइबल सदियों से कर रहे हैं। हम ऐसी किसी चीज में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे वो जिन्हें हमें कोई प्रशिक्षण या जो उन्हें कोई ऐसी चीज बतानी है, नई चीज बतानी, तो एक ऐसी चीज जिसको ये कर रहे हैं लेकिन उसकी उन्हें पहले कीमत कम मिलती थी, अब उसकी 10 गुनी कीमत मिलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टैमरिन, इमली। बस्तर में ये इमली जंगल में होता है और बहुत ही भारी मात्रा में होता है। साउथ इंडिया का लगभग 60% टैमरिन की रिक्वायरमेंट बस्तर से पूर्ति होती है। स्थानीय मार्केट में वो इमली 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये किलो मिलती है, और अगर आप उसे बड़े मार्केट में लाएंगे तो वो 120 रुपये किलो की हो जाती है। उसका रेशा निकाल दें, बीज निकाल दें तो वो 400 किलो को हो जाती है। उसकी वो आप पाउडर बना दें, उसकी आप मसाले बना दें तो वो 1000-1200 रुपये किलो बिकती है। तो ये जो आदिवासी अगर 30 रुपये किलो से मिल रहा है, उससे हम इसे 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर ला दें तो सोचिए कि उसको दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है 10 गुनी बेहतरी हो जाएगी उसमें, 10 टाइम्स इंक्रीज, और उसे फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो बस्तर में सोचिए कि लगभग 35 लाख की आबादी है, और ये 35 लाख लोग जंगलों से सामग्रियां लाते हैं 5 किलो 10 किलो, और वो उसकी अगर 30 रुपए की जगह पे 500-600 रुपये प्रति किलो कमाने लग जाए तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक बदल जाएगी। तो जो अमूल का रेवोल्यूशन था मिल्क में, आपको मैं बताऊं, दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, नॉन टिम्बर फॉरेस्टर्स have the potential to cause a second revolution for tribals and take their income to up to at least 10 times higher than what they are earning. So that is why we are doing it with such enthusiasm. The ministry is supporting us, the government of India is supporting us, and I'm sure if this goes on for the next 3-4 years, it will stabilize as a major game changer for the tribal enterprise, for tribal development, and this will set up a new story for tribal development. प्रवीर जी, आपका जो जवाब था इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रशांत जी के पास ये सवाल पूछना चाहते हैं हम। प्रशांत जी, जिस तरह से प्रवीर जी ने इसको एक तरह से पूरा साफ किया कि नक्सलवाद की जो समस्या है जो ट्राइबल बेल्ट से है वहाँ पर, उसको दूर करने में भी ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। और आज की तारीख की हम बात करें तो डिजिटल इंडिया मुहिम चल रही है, और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर वायर वहाँ पहुँचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बीच जब एक टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा ट्राइब्स को वहाँ पर अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो वही सवाल फिर आ जाता है कि ये जो अतिवाद, नक्सलवाद की समस्या जो अब काफ़ी हद तक नियंत्रित हो चुकी है, इसमें कितना कारगर ये सब सिद्ध होगा? देखिए, मैं तकनीकी को तभी कारगर मानता हूँ जब वह अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। जहां तक ई मार्केट प्लेस पोर्टल देने की बात थी वो दिया जा चुका है, और ट्राइफेड ने इसमें अभिनव प्रयोग किया है, और इसको हम थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाह रहे हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, इसमें उनके दिशा निर्देश हैं कि आप ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कीजिए। जैसा आपने बताया, एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें सारी ग्राम पंचायतों को और सारे ग्रामों को हम ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ें, भारत नेट के तहत वो चला जा रहा है, और इसकी भी सघन मॉनिटरिंग संबंधित विभाग द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ आते हैं कि अगर हम इसमें जो हमारे कामगार हैं या जो आर्टिजन्स हैं उनको हम कैसे तकनीकी से फायदा पहुंचा सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल आता है डेटा एनालिटिक्स का। निक्सी द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डाटा एनालिटिक्स बनाया गया है जो इस पे काम कर रहा है, और इस पहलू पे काम कर रहा है कि हम पहले से ही उनको, कामगारों को, कारीगरों को यह बता पाएं
कि अमुक सीजन में आपके इस आर्टिफैक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है। अभी हमारे पास बहुत डाटा नहीं एकत्र हुआ है, क्योंकि सेल के फिगर आएंगे, ग्रेजुअली उसको हम पॉपुलेट करेंगे और उन मॉडल्स को बनाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे अभी उदाहरण लें दिवाली का, बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट हैं, बंधनवार हैं, कुछ लैम्प शेड्स हैं, बहुत सारी चीजें जैसा सर ने बताया, आप सोचिए, और वह सामान इनके स्टोर में, इनके वेब पोर्टल पे उपलब्ध है। तो यदि मैं दिवाली से 3 महीने पहले अपने आर्टिफैक्ट को, आर्टिजन को ये बता दूं कि इस तरह की चीजों को बनाने की मांग बढ़ने वाली है या बढ़ेगी, तो वह आदमी उसकी सामग्री एकत्र कर लेगा और उसके पीसेस बना के तैयार रखेगा। इस तरह करने से हमने यह सोचा है कि हम उसको यह भी फोरकास्ट कर पाएंगे कि आपके इन चीजों की डिमांड आएगी और आप ये तैयार करके रखें। इसके अलावा जो तकनीकी की जो आपने दूसरा पहलू बताया कि युवाओं को यदि रोजगार के साधन, और सर ने बताया कि यदि उनको अपने उत्पादों का सही मूल्य मिलने लगेगा तो वह पथ भ्रमित नहीं होंगे। तो इसके लिए यह ई कॉमर्स पोर्टल सिर्फ पोर्टल नहीं है, वह बहुत सारे और रोजगार के लोकल स्तर पर अवसर प्रदान करता है, जो कि हम उसके फोटो लेने से लेकर कंटेंट बनाना, पैकेजिंग करना, पैकेजिंग की सामग्री उपलब्ध कराना, इस तरह की बहुत सारी लोकल अपॉर्चुनिटीज भी युवाओं के लिए पैदा हो रही हैं। और वह इसके अलावा जब उसकी पहुंच इस तरह के इंटरनेट के मार्केट को हो जाएगी तो वह और भी चीज देख के ये सोचेंगे कि हमारी यह कलाकृति किस तरह से काम में आ सकती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी अगर आप इसकी साइट को विजिट करेंगे, इसमें जो हमारे ग्रामीण दस्तकार हैं, इनके द्वारा बनाए गए हैंडल्स हैं जो दरवाजों पे लगते हैं, उन्होंने एक अपनी पुरानी कोई कला है उसको उसके हैंडल के रूप में तब्दील कर लिया, या नलों की टोटी पे भी आप उसको कर सकते हैं। तो उसका यह अभिनव प्रयोग करने की जो क्षमता है वह भी इंटरनेट की पहुंच से विकसित होगी, ऐसा मेरा मानना है। All right, Mr. Praveer, when we talk of the wide array of products which are being offered on the website, the Prime Minister had during the lockdown period called for being vocal for local, which in turn was further strengthened to go vocal for local and go tribal. So when we talk of popularity among the people, when we talk of more inclination towards tribal products, how important is the evolution, in the sense that Prime Minister did talk of how every crisis in these days has to be turned into an opportunity. Making the tribal life self-reliant, self-sufficient is one aspect, and empowerment and further progress is another aspect. Do we have this the capacity, this caliber of launching our tribal products in the international markets? Where are we standing right now? प्रवीर जी, लग रहा है कुछ ऑडियो का दिक्कत है, आप एक बार चेक कीजिएगा, तब तक हम प्रशांत जी से पूछते हैं। नहीं, अब आ गया। जी जी, बोलिए। तो दिस इज, इसमें जो है फॉरेस्ट बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्ट है, जो भारत सरकार का एक्ट है, जिसके अंतर्गत हम जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों को नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और जिस भूमि पर वो रहते हैं उसका पूर्ण स्वामित्व दिया जाता है। सो दे आर ओनर्स ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, दीज आर प्रोडक्ट्स विच दे ओन। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के पहले ये सारी संपत्ति सरकार की थी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ने आदिवासियों को ये पूरा मालिक उन्हें बना दिया है। जंगल की लकड़ी, टिम्बर छोड़ के बाकी जो जंगल में उत्पादित हो रही है सामग्री, उसके वो मालिक है ना। मालिक को व्यवसाय भी ऐसे स्तर पे करना पड़ेगा जिससे उसे पूरा आय और पूरी इनकम हो। तो उस चीज को दृष्टि में रख के जो वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम हमने कहा, वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल, मतलब ट्राइबल जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम अगर ये सोचें कि उन्हें हम कोई ग्रांट दे दें, उन्हें साड़ी फ्री दे दें, फ्री साइकिल दे दें, फ्री धोती दे दें, बच्चों का शिक्षा फ्री कर दें, तो ये डेवलपमेंट तो एक तरह का ये सहायता है, विकास नहीं है।
तो विकास की नीति के लिए उसे एंटरप्राइज में लाना पड़ेगा, और ऐसा व्यवसाय जिसका वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें उसे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड रिटेलिंग और होलसेलिंग एंड नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने पर वो काम स्टार्ट होगा। जैसे अमूल जब स्टार्ट हुआ 30 साल पहले, तो वो दूध वहां पर 2 रुपए किलो बिकता था। अब वो अमूल 2000 तरह की सामग्रियां बना के पूरे विश्व और देश में उसकी तूती बोलती है। तो वही आप सोच लीजिए कि दिस ट्राइबल स्टार्टअप हैज द सेम पोटेंशियल, और ये जंगल से उत्पादित होने वाले, हाथ से बनाई जाने वाली ट्रेडिशनल जो कारीगरी है जो ट्राइबल्स की है, उस पर आधारित एक ऐसा बाजार स्थापित करने की अभिलाषा है, कामना है, जो आदिवासियों को पूरी आय दे। ये बाजार हम बाजार के लिए नहीं लागू कर रहे हैं, बाजार के लिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आदिवासियों के लिए बाजार स्थापित कर रहे हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। सो दिस इज अ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी as well as a business strategy which benefits the tribals। तो इस तरह से इसका स्वरूप देखिएगा तो इसकी बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। ये आदिवासी बहुत ही मेहनतकश और बहुत ही उद्यमी और बहुत ही अच्छे उत्पादक हैं, बहुत ही क्वालिटी की चीजें बनाते हैं जो उनकी सैकड़ों साल के ट्रेडिशंस पर आधारित है। जहां कठिनाई है वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग, जो आज के व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसमें ये जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो इससे थोड़ी सी पृथक है। हम अगर इस विधा से उनकी विधा को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, रिटेलिंग से जोड़ देंगे तो उनकी सामग्री दुनिया की किसी भी स्तर की किसी भी उत्पादन से बेहतर है, अच्छी है, कमजोर नहीं। तो एक अच्छी चीज को अगर मार्केटिंग की सहायता से विश्व और देश राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जाए तो ये बहुत सार्थक व्यवस्था है। तो इसके वनधन की एक वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, हमारा वन, हमारा धन, हमारा उद्यम, हम ये स्लोगन के साथ काम करते हैं। और हमारे वन में धन तब आएगा जब उद्यम का लाभ हमें मिले। पहले क्या होता था, मेहनत वो करता था, फायदा दूसरे ले जाते थे, उसे बहुत सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। तो इस मार्केट लिंकिंग जो हमारी सब व्यवस्थाएं हैं, 120 जो हमारे आउटलेट्स हैं, जो ई मार्केट प्लेस की व्यवस्था की जा रही है जिसमें 5 लाख आदिवासी पोटेंशियली अपनी सारी सामग्रियां बेच सकते हैं। तो जो एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन ट्राइबल प्रोडक्शन एंड ट्राइबल एंड मार्केटिंग, उसको हम इस कनेक्ट से जोड़ के आदिवासी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक ले जाते हैं। और उन क्लस्टर्स को हम डेवलप कर रहे हैं। लगभग 50,000 क्लस्टर्स हैं देश में जहां पे आदिवासी अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। वनधन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है जिसके अंतर्गत इन 50,000 क्लस्टरों को हम मार्केट से लिंक कर देंगे और रिटेल और होलसेल के माध्यम से वो उत्पादक सीधे मार्केट में अपना व्यवसाय करेंगे। तो जो चीज़ वो सस्ते दामों पर प्राइमरी मार्केट में बेचते हैं वो अच्छी कीमतों पर, फेयर प्राइसेस पे सेकेंडरी और टर्शरी मार्केट्स में, जो मेन, जैसे दिल्ली में समझ लीजिए, जो अगर जगदलपुर का एक उत्पादक है, कांकेर में वो बेल मेटल की एक मूर्ति बनाता है, वो 200 रुपए किलो बेच देता है, लेकिन वही मूर्ति यहाँ पे 10,000 रुपए की एक मूर्ति बिकती है। तो वो 200 रुपए किलो के स्थान पर उसे 10,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएगी तो ये उसका विकास, उसकी 5 गुनी 20 गुनी बेहतरी उसकी आय में हो जाएगी। So this is the strategy behind this whole marketing strategy behind the whole concept। और इससे हम ये सोचते हैं कि लगभग 50 लाख परिवारों को लाभ हो सकता है और 50 लाख परिवार इससे 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। 26 राज्यों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। जो हमारे राज्य के पार्टनर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, तो सभी जगहों पे हमारी शाखाएं हैं। हमारे जो स्थानीय लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स के पार्टनर्स हैं, उनके अधिकारी और उनके स्व सहायता समूह, और उनके साथ मिलकर हम इस 50,000 क्लस्टर्स को डेवलप करने की योजना। और जी प्रवीण जी, दरअसल हम कार्यक्रम के अंत में हैं तो एक सवाल हम प्रशांत जी से भी पूछ लेते हैं। प्रशांत जी, ठीक है, एक वेबसाइट के ज़रिए अभी इतना अच्छा और इतनी अच्छी सफलता मिल रही है, अगर हमारे ट्राइबल उत्पादों को हम सीधे सीधे टूरिज़्म से जोड़ें तो किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं? क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना एक टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो विदेशों तक विभिन्न वेबसाइट्स के ज़रिए या दूसरे माध्यमों के ज़रिए वे विदेशों तक भी जाते हैं, और विदेशों से जो लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टेड होते हैं जो ये ट्राइबल प्रोडक्ट हैं इनमें। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं?
देखिए, तकनीकी एक माध्यम है, और जैसा भी प्राइवेट द्वारा हमें सेवाएं चाहिए जाएंगी, वह हम रूप से देंगे। और आजकल दो चीजों को लिंक करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ। जैसा आपने बड़ा सुझाव दिया, कोई पर्यटक है, पर्यटक यदि किसी चीज का कहीं प्लान बनाता है, कहीं टिकट के लिए जाता है, टिकट खरीदता है, तो मैं अपनी एपीआई से उनको ये बता सकता हूं कि यदि आप ऋषिकेश जा रहे हैं या आप अंडमान जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं, वहां आसपास ट्राइबल के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ये जीआईएस टेक्नोलॉजी से उस जगह के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सारे क्लस्टर्स की सूचना तकनीकी दे सकती है, और वहीं पर उनको लिंक भी दे सकती है कि यदि आप वहां पर उपलब्ध हैं, आप आसपास कौन से सेंटर हैं उनको विजिट कर सकते हैं। तो यह आपका बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत ही मौलिक सुझाव है, जिसको कि मैं उम्मीद करूंगा कि प्रवीण जी द्वारा इसको भी उस संबंधित मंत्रालय से बात करके यह भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जा सके। All right, Mr. Praveer, we'll wind up this program here, but very quickly and very briefly, I'll want your closing comments on, we're talking of the products, we're talking of the merchandise which is being produced by the artisans, by the tribal people. Now, tribal people, apart from products, they also have, other aspects associated, which indeed can also be harnessed further, be it their, say, music, be it their food, be it their culture. So, any, in the near future ahead, any planning on that front? Development means tribes, craft, culture, and commerce. So it's a composite of all these three. If they go together, and like the last question about tourism, it's inbuilt in the whole program. This marketing includes marketing at all those tourist places. So it's a composite development program which intends to preserve the craft and the culture and promote it through commerce. So craft and culture cannot be promoted without they being sort of commercially used for the benefit of the tribe. So it's not just a display of their craft, but a commercially viably sold product which then sustains them. So this is what TriFed is looking at, and we sort of want to promote it in all areas where tribals dwell, forest dwelling tribals, and unki quality itni achhi hai ki we are sure, given the proper marketing platforms, they'll be able to beat anybody, the best in the world. And this is begun, we call it a movement, and we are calling the country to join it. So go vocal for local, and then go tribal. A task well begun is half done. On that note of positivity, we'll end this conversation, we'll end this discussion here. Thank you so much, both of you, for joining us on Atmanirbhar Bharat this afternoon. So here we had today our guests talking on how important and how crucial can the tribal industry prove to be for the economy, and also the efforts, the measures which have been taken up for their upliftment. Again, it is being reiterated, vocal for local and go tribal as well, and that indeed would help in the longer run, making the country, not only the tribals but the country also self-sufficient and Atmanirbhar. बिल्कुल, आप लोगों से भी हम अपील करेंगे कि आप एक बार ट्राइफेड की वेबसाइट को जरूर देखें, क्योंकि उस वेबसाइट में आपको इतने उत्पाद मिलेंगे जो जनजातियों के बनाए हुए हैं, और बिल्कुल, और काफ़ी आपको खुशी होगी और आपका खरीदने का मन भी करेगा. All right, on that note, we'll end this edition of Atmanirbhar Bharat here today. Thanks for watching. Bye-bye.